is a difficult task, but BACT has been successful, and BACT is successful, and hopefully BACT will be successful and will be more effective in doing this. Thank you so much, sir, for arranging such a wonderful session. To talk about the session, this training session of 12 days was a wonderful experience. The exposure, the learning experience, the new insights that we encountered during this training session was unforeseen. We have learned so many things, be that curriculum development, be that research work, be that the role of teacher as a leader, be that reflective teaching. Each and everything, each and every session was an outstanding experience and a kind of new learning. We have been in the service for 2 years, and during these 12 days we came to know about our strengths and our weaknesses, that what do we lack, what are our strengths, and what is our role in the educational hierarchy of Government of Balochistan. So training session was amazing, and as there is room for improvement, as there is always a learning process and it goes on, it never stops. I would also like to present some suggestions on behalf of my colleagues that they gave. That the training was overall focused on theoretical, right? It was based on theories, and the time for training is less. We have the KP model in front of us that is based on 4 weeks, 24 days. Training is given to the college teachers and other teachers, so that there is room for theory and practical as well. But unfortunately, our training session was of 12 days only, so practical element was missing. ICT, digital literacy, curriculum development, test item development, the research work that the Dr. Saab was heading, each of these sessions, reflective teaching, classroom management, lesson planning, they require practical implementation. If the training time is increased to 24 days, I hope the worthy Secretary Colleges was here and he would consider this suggestion. If the time is increased, there will be room for practical and theoretical work. We talked about digital literacy, we talked about ICT, we discussed it, but we did not practice. Once again, thanks all the authorities for arranging such a beautiful session, and I hope that such other training sessions will be arranged that will contribute towards the overall revamping of education system in Balochistan to have an educated Balochistan. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Sir, Dr. Ismail Saab. Bismillahirrahmanirrahim. I will start my speech with a quote. If a person teaches me as one single word, he has made me his servant for whole life. So जितने रिसोर्स पर्सन ने मुझे पढ़ाया यहाँ पे, उसने मेरी सारी सर्विसेज लाइफ टाइम के लिए जी की। तो सबसे पहले मैं BACT का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतने बेहतरीन और वंडरफुल सेशन का एहतमाम किया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले जब आए थे BACT में तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हम क्लास को कैसे मैनेज करते हैं, कैरियर काउंसलिंग कैसे करते हैं, पेपर कैसे बनाते हैं, करिकुलम को कैसे डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता। लेकिन हम BACT ने हमें ये चीज़ सिखा के बताया कि अब हम जाके सही टीचर होंगे। कैसे एक टीचर जो है अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, स्टूडेंट कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, कितनी खामियां थी हमें, हम क्लास मैनेजमेंट कैसे करते थे, लेकिन इसमें BACT ने इंतहाई बेहतरीन रिसोर्स पर्सन का एहतमाम किया था, जिसने हमारे जितने भी साइट्स थे वो कवर किए थे, जिसमें और BACT ने एक और काम किया, हमें पंक्चुअल बनाया। लेकिन टाइम के बिल्कुल पाबंद नहीं हुआ करते थे, कभी 10 बजे कभी 11 बजे, लेकिन BACT ने हमें पंक्चुअल बनाया और हम अब पहले दिन से तो आखिरी दिन तक हमें बिल्कुल ये पता ही नहीं चला कि हम कैसे पंक्चुअल, और हम जाके अपने फील्ड में जब हम जाएंगे तो हमें ये आदत जो है वो छुटने में, चूंकि जाहिर सी बात है ये आदत तो छूट जाएगी, छुटने में हमें मुश्किलात होंगी, क्योंकि सुबह 9 बजे हम कॉलेज में होंगे, वहाँ पे ना कोई बच्चा होगा ना। तो पंक्चुअलिटी ने कैसे एक इंस्टीट्यूट को सही कर सकती है। दूसरा डिसिप्लिन, हम
पता नहीं कैसे कपड़ों में आते थे, चादर उड़ के आते थे, कैसे चपलाते, लेकिन इसने हमें ड्रेस कोड के बारे में सही तरह से बताया। इसी तरह से हमारी लर्निंग एक्सपोजर बहुत अच्छी हुई, जैसे टीचर एज लीडर, कैसे आप एज लीडर हो, और इसी तरह से कैरियर काउंसलिंग आप कैसे करते हो, रिसर्च आप कैसे करते हो, इसी तरह से बहुत से ऐसे चीज़ों से हमें आगाह किया। अब जैसे नसीम साहब ने कहा कि ये 12 दिन का जो सेशन है वो बहुत ही कम है। कम इस हवाले से है क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्स पर्सन आता था, ऐसे बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते थे, जैसे ICT हैं, जैसे डिजिटल लिटरेसी हैं, रिसर्च हैं, वो टाइम चाहिए, जैसे टेस्ट आइटम डेवलपमेंट है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम है, तो वो सिर्फ थ्योरी से हम नहीं सीख सकते, उसके लिए टाइम की ज़रूरत है। एक सेशन थ्योरी का होना चाहिए तो दूसरा सेशन प्रैक्टिकल का होना चाहिए, ताकि हम प्रैक्टिकली इसको सीख सके और जाके फिर इम्प्लीमेंट कर सके। बातें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे सजेशन है कि ये ट्रेनिंग जो है 12 दिन के बजाय या तो 3 हफ्ते होनी चाहिए या फिर 4 हफ्ते होनी चाहिए, और इसी तरह से जो डिजिटल या ICT है या रिसर्च है, इसके लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए और ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिसमें प्रैक्टिकल हो। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर बेक्ट सारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हैं, और जो हमें हर हवाले से हमें डे 1 से कहता आ रहा है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स की हर बात को जो पॉजिटिव है उनको सुनना चाहिए। हर वो फैसिलिटी जो मिसिंग है बैग से वो पूरी करनी चाहिए। सर एक विजन के साथ, और सर चाहता भी है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो सिलसिला है उसको बहुत आगे ले जाए, और उसकी जो विजन है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी विजन है। हम दुआगो हैं और लेट्स प्रे कि हमारे सेक्रेटरी साहिबान, हमारे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सर की विजन को समझ के हमारे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन के लिए हर किस्म की सपोर्ट दे दें। नाउ I'd like to call Honorable Director Nawaz Somro Sahib to come and say a few words about the training. सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिस पर वो काम करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, हम वहाँ पर खड़े, और दूसरी तरफ आप जब कॉलेज पे जाएंगे तो आपके पास ब्लैक बोर्ड भी शायद नहीं होगा। अभी ये एक बड़ा गैप है। इसको ये जो आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं, अगर हम आपको प्रैक्टिकली कराते तो आप और डिसहार्ट हो जाते कि यहाँ पर तो हमने ये किया, वहाँ कैसे। मैं तो चाहता हूँ कि आपको ब्लैक बोर्ड यूज़ करना सिखाऊँ, चाक बताऊँ कैसा होना चाहिए, तो आपके पास अल्लाह करे वहाँ पर चाक अच्छा हो और ब्लैक बोर्ड अच्छा हो जिस पर आप लिख सके और बच्चों को वो नज़र आ जाए। कहाँ पर ये प्रोजेक्टर, कहाँ पर ये, जब हम आए थे तो OHP का दौर था, या हमारे चार्ट यूज़ करते थे। अभी भी आपने बहुत से जिन्होंने BEd MAd किया होगा, तो आपके अंदर जो सलाहियतें हैं इस पर कोई शक नहीं। हमारे जो अभी जो नए आप आ रहे हैं, हम जा रहे हैं और आप आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है आपसे, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर, हमसे ज़्यादा जज्बा है, ज़्यादा नॉलेज है, हमें आपसे उम्मीद भी ज़्यादा है। इसीलिए हम आपको जदीद से जदीद चीज़ें बेहतर से बेहतर अंदाज में विद इन 12 डेज वो काम जो महीनों में नहीं कर सकते, शायद हम वो घंटों में या दिनों में कर लेते। जहाँ तक आपकी बात है कम दिनों की, एक्चुअली हमें भी पता है कि ये दिन बहुत ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम 1 महीना। हमने जो प्लान किया था अकेडमी को, उसमें हमारे प्री सर्विस ट्रेनिंग जो कम से कम 3 मंथ थी। सर हम 3 महीने की उसमें रख रहे, यानी आपको कॉलेज जाने से पहले हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास 3 महीने आप ट्रेनिंग करें, और उसके बाद जब आप कॉलेज जाएँ तो वेल स्किल्ड हों, आपको सब चीज़ें वो प्रैक्टिकली थियोरेटिकली आप जो वो सारी चीज़ें। लेकिन एक ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, हमारे बहुत ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं। ज़ाहिर आप भी आए हैं, रह रहे होंगे, गवर्नमेंट ने एक रूल्स है, आपको TAD दिए जाने चाहिए, आपको रिफ्रेशमेंट तो इतना वो मसला नहीं, लेकिन ज़ाहिर आप इतने दूर से आते हैं, होटलिंग है, आपके अखराजात होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उसमें
अगर 1 महीने की ट्रेनिंग करते तो शायद एक ही ग्रुप होता है, लेकिन अभी हमारे पास 1, 2, 3 ये चौथी क्लास, यानी हम एक फीमेल का सेशन था, एक प्रिंसिपल का, एक आपके जो बेज है, अभी आपके टोटल आपका जो बेज है वो 6 फेसेस में होगा, यानी आप दूसरा फेज, यानी 70 के 6 ग्रुप्स आएंगे हमारे पास, तो आप दूसरे, अभी इसके बाद 4 और ग्रुप रहते हैं, तो 4 और ग्रुप को शायद हमारे पास ये फंड ख़त्म हो जाएगा बजट, अगले साल में जाकर हम उनको दे सकें, तो ज़रा हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इसका भी हमारी सोच है, लेकिन हमें पता है कि इसको 1 महीने का होना चाहिए, आपके प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, आपको क्लासरूम अभी हमारे पास नहीं है, अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम आपको यूनिवर्सिटी विजिट कर रहे हैं, आपको क्लासरूम दिखाएं, वहाँ पर टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको अपने कॉलेजों में ले जाएं, आपके मॉडल जो आपके लेक्चर्स हों वो हमें पता है कि आप जो सीखें उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं या नहीं। एक और तरीका भी है कि हम आपके कॉलेज में आपको देखें कि आप जो यहाँ से सीखे वो भी कर रहे हैं या नहीं। इधर तो आपने बड़ी बड़ी बातें की और वहाँ पर जाकर आप वो तो नहीं करें कि जब क्लास का टाइम हो, जैसे मैंने शुरू के लेक्चर में कहा था कि जब क्लास हो तो आप कहें कि चाय उठा लेते, चाय पीने लगते या सिगरेट जला लेते, तो ये तो नहीं करें, ये कभी नहीं करना चाहिए। आपकी खूबसूरती पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करें, ये एक चीज़ सीख लें। प्रोफेसर, टीचर्स, लेक्चरर्स, जूनियर और सीनियर, उसके रिस्पेक्ट पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करें। मेरे टीचर के बारे में कोई गलत अल्फाज बोले, कोई गलत कमेंट्स करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। उसकी ड्रेसिंग के हवाले से, उसके बोलने के हवाले से, उसके बैठने के हवाले से, उसके खाने, वो इतना वहाँ पर उसकी अच्छी प्रेजेंस हो कि लोग खुद कहें कि बाकी आप प्रोफेसर, बाकी आप टीचर हैं, बाकी आपके यहाँ एक रेस्पेक्ट है। वो ज़ाहिर है उसी पर हम काम करें। ये जो हमारे पास अक्सर सवाल होते हैं जी हमारी सोसाइटी में टीचर की रेस्पेक्ट नहीं। देखिए सोसाइटी कोई, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये कोई रोबोटिक सोसाइटी नहीं है, ये आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं। हम सारे लोग देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। अगर आप सोसाइटी में पॉजिटिव परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, अगर आप अपने जॉब्स को, अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करें, तो न सिर्फ आपकी क्लासरूम में रेस्पेक्ट होगी और बल्कि क्लासरूम के बाहर भी होगी। आप खुद सोचें, अगर आप मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड दूंगा, आप अपने जहन में सोचें कि आप सबसे ज़्यादा किसकी रेस्पेक्ट करें, तो आपके वालिदैन के बाद आपका दूसरा नाम जो आपका टीचर का, ऐसे है या नहीं? तो ज़ाहिर आप जब एक टीचर के, आपका एक रोल मॉडल टीचर है, तो हम क्यों नहीं, मैं किसी स्टूडेंट का रोल मॉडल क्यों नहीं हो सकता है आप में से भी इस वक्त आप यंग हैं, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी आपकी इस वक्त भी रोल मॉडल होगी अपने स्टूडेंट्स की, क्योंकि आपका एक लेक्चर ही आपके स्टूडेंट को आपके सामने वो सरेंडर यानी वो भोग यानी आपके सामने वो आपकी एहतराम और मंजूर कर लेते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर की, बहुत अच्छा तजुर्बा रहा, हम बल्कि हम खुद भी सीख रहे होते हैं। हमारे पास हर ग्रुप, हर सेशन दूसरे सेशन से हम चेंज करते हैं, हर दूसरे सेशन में हमारे थीम्स भी चेंज होते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, यानी हमारे कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स, हमारी सोसाइटी, बहुत से इश्यूज़ हैं, हम उन पर नहीं जाएंगे कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन हम अपनी दुनिया में रहते हैं। हमारे दुनिया जो क्लासरूम में हमारे जो टारगेट्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे अचीवमेंट्स उन स्टूडेंट्स को माशरे का एक पॉजिटिव एक इंसान बनाना है। न सिर्फ हम खुद अच्छे बने बल्कि हमारा स्टूडेंट भी जो है वो सोसाइटी का एक अच्छा इंसान बने और वो सोसाइटी को कुछ दे सके। हम सिर्फ लेने वाले नहीं बने, कभी हम देने वाले भी बने। जिस तरह से आप नॉलेज दे रहेंगे उस तरह से वो एक अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा उस्ताद बने। अच्छे उस्ताद, अच्छे इंजीनियर से मुराद ये है कि वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचे बल्कि सोसाइटी के लिए और अपने मुल्क और कौम के लिए भी सोचे। यही हमारे विजन है और हमें उम्मीद है कि अल्लाह करेगा आप इस हमारे सोच को, हमारे विजन को पूरा करेंगे। एक दफ़ा आप सबका शुक्रिया, अपनी टीम का और ख़ासतौर हमारे चीफ गेस्ट जो हमारे बड़ा ऑनर है कि खुद टीचर भी है, प्रोफेसर भी हैं। हमारे इसी जगह से हम एक ही यूनिवर्सिटी से मैं भी पढ़ा हूँ, सर भी पढ़े, सर फारिग हुए तो मैं वहाँ पर एडमिशन लिया। तो मैं जो अभी डिस्कशन हुई
एक कोइंसिडेंस भी है, मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मेरे सीनियर एक फॉरेस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे खूबसूरत गेस्ट चांसलर भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, थैंक यू। उस्ताद का प्रोफेशन जो होता है बहुत ऊंचे दर्जे का होता है। उस्ताद का प्रोफेशन होता है प्रॉफिट प्रोफेशन। पैगंबरों का प्रोफेशन, सारे पैगंबर उस्ताद थे। आपका यो प्रोफेशन है उस्ताद का, एक पैगंबर वाला प्रोफेशन है। आपको चिल्ला काटने के लिए 12 दिन यहाँ या 40 दिन कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्लास में जो आपको चिल्ला कटता है 9 to 5, उससे बेहतरीन चिल्ला जो है ना कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका जो प्रोफेशन है, आप 1 मिनट भी आप क्लासरूम में किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए देते हैं, ये आपका सदका जारिया है। योर प्रोफेशन, योर पैशन, योर रिलीजन इज़ नॉट 3 things, इट्स 1। तो आपके साथ जैसे सिकंदर आजम से किसी ने पूछा था, आप उस्ताद को ज़्यादा इज्जत देते हो बाप को? कहता बहुत मुश्किल है मुझे जवाब देने के लिए, लेकिन मैं उस्ताद को ज़्यादा इज्जत देता हूँ। उसने कहा क्यों? कहता बाप वो था जो मुझे ऊपर से आसमान से ज़मीन पर लाया, उस्ताद वो था जिसने मुझे पढ़ा कर वापस आसमान की बुलंदियों को पहुँचा दिया। तो इतनी रिस्पेक्ट के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ रोल मॉडल बहुत ज़्यादा है। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका रोल मॉडल, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने एक ड्रेसअप है, एक ड्रेस कोड है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आप क्लासरूम में जाएं, एक लगड़ पकड़ हो तो आपका बिल्कुल ही क्या फ़ायदा हुआ फिर आपकी तालीम का, एजुकेशन का। लोग आपको रोल मॉडल देख रहे हैं, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका प्रोफेशन, जिससे बात करते हैं, सबको बराबरी की नज़र से देखना। सब स्टूडेंट हैं, सभी हमारे बच्चे हैं, आपके लिए फिर सारे बेटा बेटी के बराबर ही हैं। किसी के साथ जो मेरिट को जो ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आपकी रिस्पेक्ट ख़राब होती है जब आपने ये मेरिट को ख़राब किया, किसी के साथ गलत बात की, तो उस चीज़ों को जो ना लोग जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे ये जो यंग जनरेशन है, आप लोग जो आए हैं टीचिंग में, उम्मीद है कि बलूचिस्तान के भी नसीब बदलेंगे। हमारे बेटे बेटियां जो तरस रहे हैं, इतना बड़ा ड्रीम है उनका ज़िंदगी, उनका भी हक है इस दुनिया में, सोसाइटी में जीने का। और ये आपके हाथ में, अगर आप आगे अगर इनका ज़िंदगी बना दें, आगे बना दें इनके लिए, तो इसकी बहुत बड़ी आपको जो ना इसके रिवार्ड जो मिलेंगे आपको, उसका आप अंदाज़ा कर नहीं सकते। तो मैं आपसे यही गुजारिश है, आप जाएंगे, आप जिस अपनी कॉलेजेस में आएंगे, वहाँ पर बहुत कुछ चल रहा होगा, टॉक्सिक सोसाइटी है, लोग काम करने नहीं देंगे, कहेंगे जॉब नहीं है, रिजोर्स नहीं है। लेकिन आपने वो नहीं देखना, आपने अपना मॉडल बनाना है, आपने सोचना है कि मेरे क्या प्रिंसिपल है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। बहुत से लोग थे मेरे साथ, ग्रेजुएट हुए, मेरे बाद ग्रेजुएट हुए, कौन जानता है, कौन पहचानता है क्या किया उन्होंने, क्या कंट्रीब्यूट किया। तो आप उस जब इस प्रोफेशन में आ गए, जब आपने स्मगलिंग नहीं करनी है, गुरेजी नहीं करनी है, आपने जो ना वो ब्लैक में अपनी चाय और चावल नहीं बेचने, प्रोफेशन में आए, एजुकेशन में आपको पता है इनपुट आउटपुट क्या है, फाइनेंशियल क्या आपको मिलेगा वो आपको मालूम है। लेकिन आपने प्रोफेशन जब अपनाया है तो उसमें आपको हैंड टू माउथ रहेंगे। बाहर भी हम भी हैंड टू माउथ होते हैं, वहाँ पर ये नहीं कि आप बाहर प्रोफेसर बन गए तो आपको जो ना ऊपर से ना वो सोना और चांदी बह रहे हैं आपके घरों में, ये नहीं। वी हैव टू बी हैंड टू माउथ बिकॉज दिस इज माई प्रोफेशन। मैं भी चाहूँगा अगर इफ आई वांट टू वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर में अर्न कर सकता हूँ, बट दैट्स नॉट मी। आपकी और हमारी जो सरमाया है वो बच्चे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी बना ली। जो वो खुशी मिलेगी आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। तो ये आप उसको साथ लेकर जाएं। जो लोग आपको तंग करें या रोकने के करें, आप उनको ना देखें। आप अच्छे लोगों को देखें, अच्छे रोल मॉडल बनाएं। आप अपना बनाएं कि आपने क्या अचीव करना है, आपने क्या कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के लिए। आपके जैसे डायरेक्टर साहब कह रहे थे और कि आपने कंट्रीब्यूट क्या किया है सोसाइटी से। आप देखने की बात भी करते हैं, ये काम है कि आपने कॉलेज में गए। मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ, बच्चे आए मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ में, वो कहते हैं हमारे साथ गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया हमारे साथ। मैंने कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, आपके एक बच्चे की जो ना फीस तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए है। आपसे हम कितना ले रहे हैं? 80,000 बीटों में। बाकी जो 9,20,000 जो यूनिवर्सिटी आपको गवर्नमेंट दे रही है, सोसाइटी दे रही है, टैक्स पेयर दे रहे हैं, आप कहते हैं हमारे लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं। आज से आप जो ना पेइंग बैक टू सोसाइटी की बात करें। और ये इस चीज़ की हमारे लिए बहुत कमी है। उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, बच्चों को सेंस ऑफ ऑनरशिप दें कि क्लाइमेट चेंज है, गंद फैला रहे हो, आप अपने लोकेलिटी संभालो।
अपनी जगह संभालो, अपना मुल्क संभालो, अपना डिस्ट्रिक्ट संभालो, ये सारी चीज़ें जो उनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ से जाए, अपनी तालीम संभालो। आपको काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ें आएंगी, तो मैंने भी लोगों से यही कहा कि पॉलिटिक्स को अपना लें। पॉलिटिक्स का मैंने पॉलिटिकल लीडर से भी यही बात की, मैंने कहा आपको क्या चाहिए पॉलिटिक्स में, आपको अच्छे वर्कर चाहिए, आपको वर्कर लीडर चाहिए, मैं हाजिर हूँ, मैं आपको अच्छे वर्कर्स, आपको अच्छे लीडर्स पॉलिटिकल बना कर दूँगा। 4 साल इनके मेरे दे दें, इनको तंग ना करें, इनको एजुकेशन में जाने दें, इसके बाद जो निकलेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छे बनेंगे। इस वक्त आप इनकी ज़िंदगियाँ ख़राब कर देंगे तो ये सारी उम्र आपको गालियाँ देंगे। और हमारे सामने हुआ ये नहीं, 1985 में हमारे में कितना पॉलिटिसाइज था, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान उस सबसे पॉलिटिसाइज है, और सब देख लिया। मैंने भी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ काम किया है, लेकिन क्या वो कोई नाम निशानी, ना उन लीडर्स का नाम है, ना उन बच्चों का नाम है जिनके साथ लगे इधर उधर रोड पड़ रहे हैं। तो इनको आप ये समझाएं कि आप अपनी ज़िंदगी बनाएं, आपकी फैमिली ने जिसके लिए भेजा है आपको वो आप तो अचीव करें, उसके बाद आपने करना पॉलिटिक्स, डिग्री ले लो, उसके बाद पॉलिटिक्स करें। यूनिवर्सिटी में तो आई तो आपको ऑनर मिला है कि आपको जगह दी है कि इस यूनिवर्सिटी में आकर, आपके कॉलेज में आकर आप ये डिग्री हासिल करें। तो ये चीज़ है मैं कुछ कहना चाह रहा था। दूसरा ये कि लर्निंग को कभी आप ख़त्म ना करें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगले कुल कोई नहीं है, अगर मैंने आज कुछ नहीं सीखा तो मेरे लिए ज़ाया है, आज का दिन ज़ाया हो गया मेरे लिए। नई चीज़ सीखना, हर किसी से सीखना, क्या चीज़ है, कीप ऑन डेवलपिंग योरसेल्फ, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। लाइफ लॉन्ग लर्निंग पहले अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, क्योंकि आपने ये पढ़ाई कि आप ये किस तक वैलिड है। 10 साल के बाद टेक्नोलॉजी को छोड़ोगे जब सीनियर लेवल पर जाएंगे, यही नहीं बचेगी। आप जब तक इफ यू कैन नॉट राइड ऑन द वेव, होता है ना समंदर में आ रही है वेव के साथ, अगर उसमें नहीं आएंगे जब ही साहिल पर आएंगे, दरमियान में रह जाएंगे तो आप भवन में फंस जाएंगे। फिर उसमें सारे वही हो गए, एक दूसरे को देखा, वो काम नहीं करता तो मैं भी काम नहीं करता, वो नहीं करता मैं नहीं करता, आप दूसरों को देखे नहीं। आपकी अपनी प्लानिंग है, अपनी क्या चीज़ करना है, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, कितनी मेहनत उसमें लगानी है। आप अपना सबसे बड़े दुश्मन आप खुद ही होंगे तरक्की के लिए। रिजोर्स नहीं ठीक है, लेकिन उसकी कोई ना कोई उसका आप उसका जो ना जुगाड़ निकाल लें, कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकाल लें। व्हाइट बोर्ड नहीं है तो पेपर से काम कर रहे हैं, चलाएंगे, ब्लैक बोर्ड से काम कराएं, छोटे ग्रुप में बिठा के उनसे काम दें, उनसे कहें कि ये मैंने जो ना छाप दिया ऊपर इंटरनेट पर जाकर देख लो, ये फेसबुक में जाकर देख लो ये चीज़। और इसी तरह से आपके पास काफ़ी बातें हुई हैं के 12 दिन का कम था, मानता हूँ कम था ये, लेकिन इसका कुछ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन देखें। ये भी सोल्यूशन है ना, आप अपने कॉलेजेस में जाएं, कॉलेजेस में कितना है लर्निंग एंड टीचिंग कमिटीज़, वहाँ पर जो है ये काम जो आपने सीखा है लर्निंग टीचिंग कमेटी में हो, कॉलेजेस में हो, दूसरों लोगों के साथ वहाँ पर हर हफ्ते मीटिंग हो, क्या सीखा क्या पढ़ा है, वहाँ पर ये जो आपने सीखा है एज अ जैसे आप जो यू आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ सी चेंज, आप जाकर वहाँ इंस्टिगेट करें, अपना जो ना एनर्जी इंस्टिगेट करेंगे, ये हम सीख कर आए हैं, वी वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी, और आपने जो है वो शेयर करें। तो 1-2 घंटे की जो ना हर हफ्ते वहाँ पर टीचिंग लर्निंग का सेशन होने चाहिए हर कॉलेजेस में, ठीक है। और उसके साथ ये कि अगर आपकी कॉलेज की कोई फेसबुक है, अगर आपकी यहाँ एक्टिविटी फेसबुक है तो आप लोग उस फेसबुक के मेंबर बन जाएं। जो चीज़ आपने पढ़ी आप बता देंगे ये पढ़ रहा हूँ या मुझे ये मुश्किल हो रही, तो जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है उसको टेक्नोलॉजी की नोयत से दोस्तियाँ भी हैं आपकी, आप उसको शेयर भी करें कि मैंने ये पढ़ाया, ऐसे हुआ, ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किसी के पास इसका सोल्यूशन है। सो वर्क एज ए कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस आप अगर फेसबुक में बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप है भी हमारे ग्रुप जी 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 व्हाट्सएप के साथ अगर फेसबुक पर बना लें तो उसमें ये कम्युनिटी प्रैक्टिस के जितने भी ब्लॉग हैं, जब जो सीखा है आप उसमें इंफॉर्मेशन दें, उसमें जी उसको थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग करें, सो टेक्नोलॉजी कैन फैसिलिटेट दिस। और फिर ये कि आप जरा सोचें अपनी प्लानिंग में कि इनको हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद बुलाएं, ये पढ़ कर गए थे, आपने क्या किया उसका आप उनका रिफ्लेक्शन लेना, इसके बाद क्या हुआ, आप शॉर्ट फ्रेश कोर्सेज हो 2-3 दिन के, आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या नेक्स्ट क्या है। तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपसे कहना चाह रहा था, लेकिन ये कि आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई होप इन योर हैंड future of Balochistan will be